Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is English grammar, and in today's video I will explain you a new lesson, that is lesson 24, and the topic of the lesson is punctuation. So, as you all have seen that in the syllabus of our first term examinations we have done some definitions related to punctuation marks. We have done over, I think, around 5 definitions. So in the syllabus of second term examinations, which is of B1 syllabus, we will cover the remaining definitions of punctuation in the written work. But in the explanation of today's lesson I will explain you all the definitions related to punctuation marks. So let's get started. First of all, let's see that what is punctuation. So punctuations are some kind of marks, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं which we use to when we are writing to clear the meaning of a passage, to clear the meaning of a sentence. ओके सो हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या करते हैं, हमारे पैसेज को समझने में और पढ़ने के लिए ईजी कर देते हैं. सो पंक्चुएशन मार्क्स मेक इट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ पैसेज. लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि पंक्चुएशन मार्क क्या करते हैं, जो भी पैसेज या सेंटेंस हमने लिखा है उसको रीड करने में और समझने में ईजी कर देते हैं. लुक एट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन. सो एज आई टोल्ड यू कि पंक्चुएशन क्या होता है, एक प्रकार के मार्क्स होते हैं अलग अलग, एंड द यूज ऑफ एवरी पंक्चुएशन मार्क इज डिफरेंट. सो द फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज वेरी कॉमन. Whenever we are finishing a sentence we use a full stop. जब कभी भी हम किसी सेंटेंस को फिनिश करते हैं हम full stop का यूज़ करते हैं. What is the definition? Let's see. The full stop is added at the end of a sentence. It is also added before abbreviation for titles and degrees. So first thing which I have told you already, that when we are completing a sentence, when we are finishing a sentence, so at the end of a sentence we put a full stop. Second, we also add a full stop after an abbreviation फॉर द टाइटल्स एंड डिग्रीज. जो टाइटल्स होते हैं, डिग्रीज होते हैं, उनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हम लिखते हैं, देन ऑल्सो हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल. द फर्स्ट वन इज टुडे इज़ द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन. आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है. सो दैट इज़ अ सेंटेंस एंड अ फुल स्टॉप इज यूज्ड इन द एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो दैट इज the first use. Second is B.Ed. The full form of B.Ed is Bachelor of Education. Then M.Phil, Master of Philosophy. UNO, United Nations Organizations. So B, then full stop, then add. क्या किया हमने, बैचलर का बी लिया एंड एजुकेशन का ईडी, देन मास्टर का एम एंड फिलोसफी का फिल, देन यूनाइटेड का यू एंड नेशंस का एंड ऑर्गेनाइजेशंस का ओ. और हमने क्या किया, हर लेटर के बाद में फुल स्टॉप लगा दिया. दैट मीन्स हमने क्या किया, ये एब्रिविएशन बना दिया, हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी इन डिग्रीज की और इन टाइटल्स की. सो दैट इज द यूज ऑफ फुल स्टॉप. सेकेंड पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क, विच इज़ वेरी ईजी because a question mark is used at the end of a question whenever we are asking, not at the time of asking. You cannot speak a question mark when you are writing a question, so you will end a sentence, an interrogative sentence with a question mark. किसी भी sentence में जब आप question पूछते हैं तब हम उसे question mark के साथ end करते हैं. See the examples. Why are you staring at me? तुम मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो? What is the time? समय क्या है? So they both are questions and they both are ending with a question mark. Next punctuation mark is of exclamation mark, which looks like this, as you can see in the book. So what is the use of exclamation mark? Let's discuss. So first is, an exclamation mark is used for the following. The uses are given here. First is at the end of an exclamatory sentence or with an interjection expressing a sudden strong feeling. So पहली चीज़, exclamatory sentence का जो end होता है, that ends with an exclamation mark. So exclamatory sentences which expresses some sudden strong feelings, which we have discussed in the kinds of sentences कि exclamatory sentences वो होते हैं जो sudden, अचानक से आने वाले भावों को व्यक्त करते हैं when we are writing. So हम क्या करते हैं, exclamatory sentences के end में exclamation mark लगाते हैं at the end of interjection expressing a sudden और strong feeling. जो अचानक से मजबूत भाव आते हैं हमारे बात करने में, हमारे स्पीच में. सो हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, विद एक्सक्लेमेशन मार्क. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल, ब्रावो, शाबाश, वेरी वेल प्लेड इंडीड, अवश्य ही बहुत अच्छा खेला.
So bravo, shabash. When you are watching a match, like you are watching a match and someone has done very well, so suddenly you will say bravo, shabash. So uh, these are expressing some strong and sudden feelings. Second is with words like what and how to express strong emotions. अगर how और what के साथ हम strong emotions show कर रहे हैं in exclamatory sentences, then also we use exclamation mark. So the first one is how lovely to meet you. कितना प्यारा होगा तुमसे मिलना. What a wonderful painting. कितनी प्यारी पेंटिंग है. Third use is at the end of a funny or an ironic sentence or a sentence expressing coincidence. कोई एक फनी सेंटेंस के एंड में कोई आयरॉनिक सेंटेंस हो या फिर कोई सेंटेंस कोइंसिडेंस किसी इत्तेफाक को दर्शाता हो. सो शी वॉज एट द कॉफ़ी शॉप टुडे एज वेल. वो आज भी कॉफ़ी शॉप पर थी. सो दैट इज कोइंसिडेंस, एक प्रकार का इत्तेफाक है. सेकेंड इज द टूल वॉबल्ड एंड बिफोर वी न्यू इट शी वॉज ऑन द फ्लोर. सो द टूल वॉबल्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाया. एंड बिफोर वी न्यू इट, इससे पहले कि हम जानते, शी वॉज ऑन द फ्लोर, वो उस फ्लोर पर थी. सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज ऑफ कॉमा. कॉमा इज वेरी कॉमन, ऑल ऑफ यू हैव यूज्ड इट. अ कॉमा डिनोट्स अ ब्रीफ पॉज. जब हमें एक संक्षिप्त पॉज मीन्स रुकना होता है कुछ समय के लिए, तब हम कॉमा का यूज करते हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एंड द यूजेस ऑफ कॉमा आर गिवन फॉलोइंग. फर्स्ट one is to separate a series of words, phrases or clauses in the sentence. In a sentence, if we have to separate a series of words, एक जैसे जो words होते हैं उन्हें अगर हमें separate करना है, phrases को अलग करना है, clauses को अलग करना है, then we use comma. See the example. We bought eggs, bread, baking powder and skimmed milk for the pudding. हमने पुडिंग के लिए eggs खरीदे, bread खरीदा, baking powder खरीदा and skimmed milk खरीदा. So here these all are the ingredients which is used to make पुडिंग. सो हमने क्या किया, कॉमा से सभी को सेपरेट किया. सेकेंड इज महात्मा गांधी वॉज लव्ड बाय द हाई एंड द लो, द रिच एंड द पुअर. महात्मा गांधी को सभी प्यार करते थे. मीन्स हाई एंड लो, बहुत अमीर और गरीब, हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा, सभी प्यार करते थे. द रिच एंड द पुअर, और अमीर और गरीब भी. सो हेयर द रिच एंड द पुअर, द हाई एंड लो, इन फ्रेसेस को हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं. Third sentence is I have several friends who are adventurous during and love traveling. मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो एडवेंचरस हैं, ड्यूरिंग हैं और ट्रैवल करना पसंद करते हैं. सो यहाँ पे हमने हर वर्ड को कॉमा से सेपरेट किया है. सेकेंड यूज ऑफ कॉमा इज टू सेपरेट अ नाउन used for addressing someone from the rest of the sentence. This also applies to words like yes, no and oh. So if in a sentence we are using a noun, हमने कोई नेम यूज़ किया और हम उसी नाउन के बारे में पूरे सेंटेंस में बताएंगे, सो हम क्या करते हैं, उस नाउन को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं. इसी तरीके का यही हमारा जो रूल होता है अप्लाई करता है ऑन येस एंड नो ऑल्सो. समटाइम्स इफ यू हैव seen any question is written like how many brothers, do you have any brother, like a question is there, so you write yes comma I have a brother, मेरा एक भाई है. so you are separating yes with a comma. so example देख लीजिए. रचल put those books on the table. so रचल को हमने कॉमा से सेपरेट किया. रचल ये किताबें टेबल पर रख दो. yes I have placed the order for the new book. हाँ, मैंने नई किताब के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है. थर्ड यूज़ है हमारा टू सेपरेट एक्सप्रेशंस दैट आर इन अपोजिशन. जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं अपोजिशन में, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. द एकेडमी फेलिसिटेटेड स्टीफन स्पिलबर्ग, द फेमस डायरेक्टर. सो यहाँ क्या, द एकेडमी फेलिसिटेटेड मीन्स होता है अभिनंदन करना. स्टीवन स्पिलबर्ग द फेमस डायरेक्टर, एकेडमी ने क्या किया, अभिनंदन किया जो फेमस डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पिलबर्ग उनका. सो यहाँ हमने क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर लिया. किसको सेपरेट किया, द नेम ऑफ द डायरेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द फ्रेज द फेमस डायरेक्टर. फोर्थ यूजेस टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इफ क्वेश्चन टैग्स इज गिवन, तब हम क्या करते हैं, कॉमा से क्वेश्चन टैग्स को सेपरेट करते हैं. ही इज़ टू बिग फॉर हिज बूट्स, वो अपने जूतों के लिए बहुत बड़ा है. इजंट ही, क्या वो नहीं है. सो क्वेश्चन मार्क में हम कंफर्म करते हैं दैट द सेंटेंस विच इज बीइंग आस्क्ड और विच इज बीइंग सेड इज येस और नो.
सो समवन इज अग्री विद इट और नॉट. सो यहाँ हम क्वेश्चन टेक्स्ट को क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं. फिफ्थ यूज इज टू सेपरेट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच. सो डायरेक्ट स्पीच एवरीवन नोज अबाउट इट. सो डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं, स्पीकर के वर्ड्स को एंड सम अदर वर्ड्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से. माई डॉक्टर सैड, मेरे डॉक्टर ने कहा, देन कॉमा, यू नीड टू रेस्ट वेल, उन्होंने कहा कि तुम्हें अच्छे से रेस्ट करने की आवश्यकता है. 6 यूज़ है आपका टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ द डेट फ्रॉम द अदर. यानी जब आप डेट मेंशन कर रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, वन पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करेंगे. लाइक यू कैन सी इन द एग्जाम्पल May 7, 1961. सो हियर वी आर सेपरेटिंग द डेट एंड द ईयर एंड द सन with a comma. So next punctuation mark is semicolon, which looks like this. A semicolon is used to separate independent clause not joined by a conjunction. एक semicolon किसको introduce करता है, सॉरी separate करता है, अलग करता है एक independent clause को. Independent clause which does not need any other clause to complete its meaning, और वो किसी conjunction के साथ भी join ना हो. वरुण इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, वरुण बास्केटबॉल प्लेयर है. देन सेमीकॉलन, ही ऑल्सो प्लेज द वायलिन, वो वायलिन भी बजाता है. सो यहाँ पर हमारी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज वी विल सेपरेट दैम, दे बोथ हैव देयर इंडिविजुअल मीनिंग. फर्स्ट, वरुण इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, वरुण एक बास्केटबॉल प्लेयर है. सेकेंड, ही ऑल्सो प्लेज द वायलिन, वो वायलिन भी बजाता है. एंड हेयर दे आर नॉट जॉइंड विद एनी कंजक्शन. सो किसी भी कंजक्शन के साथ जब नहीं जुड़ी होती हैं ऐसी क्लॉसेस, तब हम सेमीकॉलन का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा है कॉलन, विच लुक्स लाइक दिस. सो अ कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. पहले तो एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है कॉलन का. सेकेंड, सो एग्जाम्पल इज गिवन, 3 थिंग्स मेक अस ह्यूमन, 3 चीज़ें हमें ह्यूमन बनाती हैं. देन कॉमन आया, हम लिस्ट का यहाँ पर शो कर रहे हैं. आर कंपैशन, हमारी सहानुभूति. आर क्रिएटिविटी, हमारी सृजनात्मकता. एंड आर स्ट्रेंथ, और हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें मनुष्य बनाती है. सो हेयर वी आर शोइंग अ लिस्ट. हमने क्या किया, 3 थिंग्स मेक अ ह्यूमन, देन वी हैव यूज्ड अ कॉलन, ओनली कॉलन, एंड देन हमने उन लिस्ट को शो कर दिया. नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क इज डैश. So dash and hyphen look similar, but the use of dash and hyphen is different. So dash is used in the following situations. First is in pairs to insert an explanation in the middle of a sentence. This is extra information and the sentence would make complete sense without it. हम क्या करते हैं, when we are इंसर्टिंग एनी एक्सप्लेनेशन इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के बीच में हम एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहे हैं, देन वी हैव टू टेक अ ब्रेक, और उस ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं, डैश का यूज़ करते हैं. ये जो एक्सप्लेनेशन हम ऐड कर रहे होते हैं, दिस इज एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन. इफ वी विल नॉट ऐड दिस एक्सप्लेनेशन, देन ऑल्सो द सेंस ऑफ द सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड. मीन्स एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होती है, अगर आप इसको ना ऐड करें देन ऑल्सो आपका जो सेंटेंस है वो अपना सेंस कंप्लीट करेगा. सो एग्जाम्पल है, द पर्सन एज डिस्क्राइब्ड बाई आर्चिमिडीज involved the use of giant pulleys. So the process involved the use of giant pulleys, that is sufficient. हमने क्या किया, यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया, द प्रोसेस क्या, एज डिस्क्राइब्ड बाई आर्चिमिडीज. सो जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया आर्चिमिडीज ने डिस्क्राइब की थी. सेकेंड इज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम डैश का यूज़ करते हैं. एवरीवन में हमारे कौन आए, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. अप्रूव्ड द न्यू टाइमिंग फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. नई जो टाइमिंग है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने अप्रूव की है. लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क. सो नेक्स्ट इज हाइफन. As I already told you that hyphen and dash look similar, but the use of hyphen and dash is different. So a hyphen is used in the following situations. Let's see. First is with compound words, numbers and adjectives. When we are making a compound word, like if we are joining 2 words together to make a compound word, then we use a hyphen. Let's see the example. Passers-by, passerby. 33, state of the art. So here we are joining 2 or more words together with a hyphen. Next is to add a prefix to a word. If we are adding a prefix to a word, sometimes we need to add a prefix by using a hyphen. See the example, cooperative, postmodern. Next type of punctuation mark is apostrophe. So apostrophe looks like this. An apostrophe is used in the following situations. In which situation we will use the apostrophe? See. First one is to indicate the possession form of a noun.
अगर हमें एक नाउन का, एक संज्ञा का पोजेशन फॉर्म दिखाना है, मीन्स स्वामित्व दिखाना है, देन वी यूज लाइक मैरीज ड्रेस, मैरी की ड्रेस, सुजैज बुक, सुजय की किताब, चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन, ब्रूटस स्वॉर्ड, ब्रूटस की तलवार. सो हेयर बाय यूजिंग द एपोस्ट्रॉफी इन एवरी वर्ड वी आर मेकिंग द नाउन पोजेसिव. हमने क्या किया, पोजेसिव नाउन बना दिया. यहाँ हमने स्वामित्व दिखाया है. नेक्स्ट सिचुएशन इज टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन. जब हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करना होता है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म, लाइक ही इज हैप्पी, वी कैन राइट ही इज हैप्पी. इट्स अ लवली डे, इट इज़ अ लवली डे. सो यहाँ हीज एंड इट्स में हमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है. नेक्स्ट यूज इज टू डिनोट यूनिट्स ऑफ टाइम, मनी एंड स्पेस. अगर हम डिनोट कर रहे हैं यूनिट ऑफ टाइम, मनी एंड स्पेस को, अ डेज जर्नी, अ रुपीज वर्थ, a meter's length. Next type of punctuation mark is inverted commas, which are also called quotation marks. So what is the use of inverted commas? Let's see. Inverted commas are used in the following situations: to mark off the words of the speaker from the rest of the sentence in direct speech. Direct speech में जो एक स्पीकर बोलता है, उन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, टू मार्क ऑफ, उनको लिमिटेड करने के लिए, सीमित करने के लिए. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. तब हम क्या करते हैं, उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं. राज सेड इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस वी हैव मेट. राज ने कहा, ठीक है, देन कॉमा, बट राज ने क्या कहा, द वर्ड्स वी हैव कैप्ट इन इन्वर्टेड कॉमास. इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस व्हेन वी हैव मीट. लंबा समय बीत गया है कि हम नहीं मिले हैं. डिम्पल सेड, डिम्पल ने कहा, वुड यू लाइक टू विजिट द अम्यूजमेंट पार्क विद मी. क्या तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमना चाहती हो. सो द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर we have kept in inverted commas. Next use is to denote names of poems and short stories. If we have to write the names of the poem and the names of short stories, we write in the inverted commas. As you can see in your English literature, whenever you are writing the name of the poem and the name of the poet in the explanation, you write in the inverted comma only. See the example. Have you read Where the Mind is Without Fear by Tagore? क्या तुमने पढ़ी है Where the Mind is Without Fear is a name of a poem written by Tagore. So हमने इसको inverted comma में रखा because it is a name of a poem. Second is Dusk by Saki is my favorite short story. Saki के द्वारा लिखी गई Dusk मेरी favorite short story है. So Dusk we have written in inverted comma because it is a name of a short story. So that is the use of inverted commas. Next type of punctuation mark is capital letters. So capital letters are used in the following situations. किन सिचुएशन में यूज किया जाता है, फॉर प्रॉपर नाउन्स. व्हेन वी हैव टू राइट अ प्रॉपर नाउन, सो वी विल राइट विद अ कैपिटल लेटर ओनली. Sachin Tendulkar, London, the Himalayas, they all are proper nouns because Sachin Tendulkar is the name of a famous cricketer. London is a country. The Himalaya is a mountain. To begin the words of the speaker in direct speech. So when we are writing a direct speech, हमने लिखा Karthik said, then we have written a comma, then we have put a comma, sorry. So उसके बाद जब हम स्पीकर के वर्ड्स स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर ओनली. दैट इज इट इज़ गोइंग टू रेन इन द इवनिंग. शाम में बारिश होने वाली है. नेक्स्ट यूज इज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. जब कभी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. टुडे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, टॉलस्टॉय इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम. टॉलस्टॉय जो हैं वो मतलब सदाबहार लेखकों में से एक हैं. यू कैन टेक द करेक्ट सीट, यू कैन टेक द कॉर्नर सीट इफ़ यू वांट टू. तुम कॉर्नर सीट ले सकते हो अगर चाहो तो. नेक्स्ट इज टू राइट द प्रोनाउन आई. वेन एवर वी हैव टू राइट आई, वी नेवर राइट इन अ स्मॉल लेटर. हमें अगर सेपरेट एक प्रोनाउन आई लिखना होता है, मीन्स मैं, हम हमेशा उसको कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं. माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू लद्दाख. मैं और मेरा भाई लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं. इवन आई इज कमिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, देन ऑल्सो वी आर राइटिंग विद अ कैपिटल लेटर. फिफ्थ यूज इज फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन इन अ पोएम. when we are writing a poem, so in each line of a poem we will start the line with a capital letter. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. So these lines are from the poem Daffodils, written by William Wordsworth, and every line of the poem is started with a capital letter. Six uses: when we write the title of books, stories and essays, we capitalize all the words except articles, prepositions and conjunctions in the middle of the name. So जब कभी भी हम टाइटल लिख रहे हैं किसी बुक का, स्टोरी का टाइटल लिख रहे हैं, ऐसे का टाइटल लिख रहे हैं, सो हम हर लेटर को कैपिटलाइज करते हैं. मीन्स उस टाइटल के हर लेटर को
मतलब हम कैपिटलाइज करेंगे एक्सेप्ट अगर उसमें आर्टिकल दिया है, प्रीपोजिशन दिया है एंड कंजक्शन दिया है, वो भी मिडिल में। इफ़ दे ऑल आर गिवन इन द स्टार्टिंग तो हम उसका कैपिटल ही करेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल डॉग्स, हमने द का टी कैपिटल किया बिकॉज फर्स्ट लेटर है, गॉड का जी कैपिटल है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, दैट्स वाई कैपिटल नहीं है, स्मॉल का एस एंड थिंग्स का टी। द ब्लू अम्ब्रेला, द हमारा इसलिए कैपिटल है टी बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइटल, देन ब्लू का बी कैपिटल है एंड अम्ब्रेला का यू कैपिटल है। अंडरस्टूड एवरीवन दैट वेन एवर वी आर राइटिंग अ टाइटल ऑफ अ स्टोरी, ऐसे और बुक, सो हम हर लेटर को, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे। मीन्स जितने भी वर्ड का वो टाइटल होगा, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे एक्सेप्ट द प्रीपोजिशन कंजक्शन गिवन इन द मिडिल। नेक्स्ट हमारा 7th यूज आता है फॉर टाइटल्स ऑफ पीपल, लोगों के टाइटल के लिए। लाइक इफ़ यू हैव टू राइट मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, सो हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बैरेट, मिसेस मिश्रा, डॉक्टर साहा। 8th uses for names of buildings, bridges and monuments. As I already explained you that when we have to write proper nouns, we always write it with a capital letter. So buildings, bridges and monuments, they all comes under the proper nouns only. The Howrah Bridge, which is famous, the Eiffel Tower, the Taj Mahal. So these were the uses of capital letters. I have explained all types of punctuation marks. I think everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.